اسی سے قیادت ابھرتی چلی گئی۔ مسلم لیڈرشپ کا جو کہیں نہ کہیں فقدان ہے یا کمی ہے، یہ واقعی اس سے جو ہے لوگوں کو پریشان ہونے والی بات ہے، خاص طور سے مسلم طبقے کو۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے تو یا تو ملائم سنگھ یادو کی طرف نظر جاتی ہے، لالو پرساد یادو کی طرف نظر جاتی ہے، یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی طرف جاتی ہے۔ مسلمان کے نام پر مسلم قائد آج نہیں ہے، نہ صرف مسلم طبقے میں بلکہ دوسرے جو برادریاں ہیں ان میں بھی، یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان میں بھی جو ہے کوئی قائد نہیں ہے۔ جو لوگ سیاسی پارٹیوں میں موجود ہیں وہ صرف اپنے باسز کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلم قیادت کا فقدان۔ دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائف سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام۔ ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خاص بات کے ساتھ میں ہوں ابو ہریرہ۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ وزیراعظم 29 جنوری کو قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن کا کریں گے افتتاح۔ رحمان خان نے کہا وقف جائیدادوں پر قبضہ فوجداری جرم۔ دہلی میں سماجی اور ملی تنظیموں کا مشترکہ اجلاس۔ مسلم مسائل کو منظم طریقے سے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی طے۔ مظفر نگر فسادات کے معاملے میں مرکز کو بھی ادا کرنا چاہیے اپنا کردار۔ متاثرین سے ملاقات کے بعد CPI مالے کا مرکز سے مطالبہ۔ مناج القرآن کا کانپور میں منعقدہ جلسہ بھی منسوخ۔ معروف اسکالر طاہر القادری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں گے خطاب۔ اور ملک سے کوسوں دور ایک ادیب پچھلی 3 دہائیوں سے کر رہا ہے اردو کی خدمت۔ معروف ڈرامہ نگار جاوید دانش کے کارناموں پر ایک نظر۔ آگے بڑھیں گے۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن کا 29 جنوری کو افتتاح کریں گے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گی۔ رحمان خان نے کہا کہ قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن ان کا دیرینہ خواہاں تھا اور اس کے قیام سے وقف جائیدادوں کو ترقی حاصل ہوگی۔ مرکزی حکومت نے ملک کی وقف جائیدادوں کی ترقی کے لیے قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن قائم کیا ہے۔ 31 دسمبر کو باقاعدہ اس کا قیام عمل میں آیا۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور کے رحمان خان نے دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 5 لاکھ ایکڑ پر وقف جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں سے 50% وقف جائیدادوں پر ناجائز قبضہ ہے۔ رحمان خان کا کہنا ہے کہ قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن کے قیام کے ذریعے وقف جائیدادوں کو ترقی دی جائے گی اور کمرشل بنیادوں پر انہیں فروغ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ 29 جنوری کو اس وقف ترقیاتی کارپوریشن کا افتتاح کریں گے۔ انشاءاللہ 29 جنوری کو اس کا فارمل افتتاح ہمارے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جی اور کریں گے، اور UPA کی چیئرپرسن श्रीमती سونیا گاندھی جی بھی اس میں موجود رہیں گے ایز اے چیف گیسٹ۔
مرکزی وزیر کا کہنا ہے کہ وقف جائیدادوں کی لیز کی مدت زیادہ سے زیادہ صرف 3 سال ہوگی۔ کے رحمان خان نے بتایا کہ 3 سال مکمل ہونے کے بعد لیز کی مدت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وقف جائیدادوں کا کرایہ مارکیٹ ریٹ کی بنیاد پر طے کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور نے مزید بتایا کہ وقف جائیداد پر قبضہ ایک فوجداری جرم قرار دیا گیا ہے۔ ہم وقف کی جائیداد پر کوئی ناجائز قبضہ کرنا کرمنل افینس کر دیا گیا ہے، یعنی انکروچمنٹ کا ڈیفینیشن کو ہم نے وائڈن کر کے کوئی بھی شخص اگر اوقاف کی پراپرٹی پہ قابض ہے یا بیٹھا ہے، اگر اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے یا کوئی لیز اگریمنٹ نہیں ہے اور وہ لیز اگریمنٹ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے تو وہ ناجائز قبضہ قرار دیا جائے گا۔ کے رحمان خان نے بتایا کہ وقف ایکٹ میں ترمیم کے بعد سینٹرل وقف کونسل کو اختیارات حاصل ہو گئے ہیں اور اسے ایک ریگولیٹر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب سینٹرل وقف کونسل ملک کے تمام وقف بورڈوں کا نگراں ادارہ بن گیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ یو پی اے حکومت اقلیتوں کی ہمہ جہت ترقی کی پابند ہے اور اسی سلسلے میں قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ غالب اکیڈمی دہلی میں مسلم تنظیموں اور سماجی کارکنان کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں درجنوں تنظیموں کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں مسلم این جی اوز اور اداروں کے ذمہ داروں نے مسلمانوں کے اہم مسائل پر متحد ہو کر کام کرنے سے اتفاق کیا تاکہ مسلمانوں کی آواز کو منظم پیمانے پر ایوانوں تک پہنچایا جا سکے۔ لوگ ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں سے، اپنی اپنی برادریوں سے، اپنے اپنے تنظیموں سے باہر نکلیں اور ایک ہو جائیں، ایک ہو کر ہم آج جو موجودہ حالات ہیں، پولیٹیکل سچویشن ہے، ان حالات کا جائزہ لے کر یہ طے کریں کہ ہمیں آنے والی لوک سبھا کے الیکشن میں یا ہونے والے آئندہ اسمبلی الیکشن میں مسلمانوں کو کس سمت جانا چاہیے۔ پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے بہت ساری سنستھاؤں نے، بہت ساری جو بھی ہیں انہوں نے مطلب اکٹھا ہونے کی کوشش کی لیکن کچھ کر نہیں پائے۔ لیکن ان کی سوچ نے جو یہ کہا ہے کہ جو بھی مسلم کمیونٹی کے جو بھی مطلب سے برادریاں ہیں ان کو سب ایک جگہ پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی بات کی ہے انہوں نے۔ سی پی آئی مالے نے مظفر نگر فسادات کو سیاسی اور مجرمانہ سازش قرار دیا ہے۔ پارٹی نے لکھنؤ میں ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہے۔ فساد متاثرین کو انصاف دلانے اور ان کی بازآباد کاری کے لیے مرکزی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ سی پی آئی مالے کی ایک ٹیم نے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ میں دنگوں کو سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کی ملی بھگت قرار دیا گیا۔ پردرشن کر رہے تھے جس کو ہم لوگوں نے سوئم دیکھا جانا ہے اور بالمکن جی میرے ساتھ تھے، ہم دونوں لوگوں نے دیکھا ہے اور سرکار ان اپرادھیوں کی جو دنگے میں نامزد ابھیوکت ہیں، ہتیاؤں کے ابھیوکت ہیں، بلاತ್ಕಾروں کے ابھیوکت ہیں، ان کی گرفتاریاں نہیں کر رہی ہے۔ تو سرکار نے ایک میسج دے دیا ہے، راحت شیوروں سے سرکار نے ہاتھ پوری طرح پیچھے کھینچ لیے۔ کسی بھی راحت شیور میں سرکار کی طرف سے کسی بھی پرکار کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان کے پنرواس کی ویوستھا کیجیے، ان کے زمین کا ملیانکن کیجیے، ان کے آواس کا ملیانکن کیجیے اور یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ کیندر سرکار جو بہت اس میں اپنے کو سادھو بنائے ہوئے ہے وہ غلط ہے۔ کیول دھارا 356 نہیں ہوتی کہ اب راج سرکار کو ہٹا دیجیے، ایک دھارا 355 بھی ہے جس کے تحت اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں ہیں اور دھیان نہیں دیا جا رہا ہے تو وہ راجیہ سرکار کو بائی آرڈر نردیشت کر سکتی ہے کہ آپ یہ کریے۔ مظفر نگر میں جو 6 FIR ہوئی ہیں جن مہیلاؤں کے ساتھ بلاತ್کار ہوا ہے، اس پورے ایریا کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں کی مہیلائیں یہ بولنے کو تیار نہیں کہ ہمارے ساتھ بلاತ್کار ہوا ہے، کیونکہ وہاں کھاپ پنچایت بہت پرومیننٹ طریقے سے کام کر رہی ہیں، تو ہمارا یہ جو FIR درج ہوئی اس کے خلاف بھی پورا ایکشن ہونا چاہیے جن لوگوں نے بلاತ್کار کیا ہے۔ یہ بھی ایک اہم ڈیمانڈ ہے ہم لوگ کی۔ سیاسی جماعتوں میں سیاسی لیڈران کا آنا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے،
लेकिन मगरबी बंगाल के रियासती कांग्रेस में पुराने लीडरान की शमूलियत को बंगाल की सियासत में नई तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। मगरबी बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम चुनाव से पहले लीडरों की उछल कूद बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के एमपी सुमन मित्रा ने 21 जनवरी को इस्तीफा देकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुलेमान खुर्शीद, जिन्हें मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से भी हाथ धोना पड़ा, वो भी मित्रा के पीछे हो लिए। सुलेमान खुर्शीद का शुमार मुस्लिम दानिश्वरों में होता है। अब वो कांग्रेस के बैनर तले मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा हालात पैदा हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में कि फिरका परस्ती जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है और मुसलमानों में एक इंतशार भी फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे कुछ मुस्लिम उलमा हजरात ही मतलब इसमें मुलव्वस हैं। ऐसी सूरत में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी मुझे कि जिसके जरिए हम मुस्लिम आवाम तक भी पहुंच सकें और हमारे मिल्लत के अलावा कौम तक भी पहुंच सकें। तृणमूल कांग्रेस इसे बेमतलब की दौड़ बता रही है तो कांग्रेस इसे नेक शगुन से ताबीर कर रही है। देखिए, जो लोग तृणमूल में कोई जगह नहीं पा रहा है वो लोग जा रहा है, उससे कोई दौल का फर्क नहीं पड़ता। दौल अभी बड़ा हो गया। अभी तो कमजाद अली और सुलेमान खुर्शीद के अलावा और इम्पोर्टेंट कोई लोग नहीं गया। तो ये लोग का कोई पब्लिक बेस नहीं है। अभी दे आर माने डेविएटेड फ्रॉम पब्लिक, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मुसलमान की अक्सरियत तो आज भी कांग्रेस के साथ है। चंद एक लोग गए थे, लेकिन उनको भी अब एहसास हो रहा है कि जो उम्मीद उन्होंने किया था वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। सिर्फ वादे हैं, दावे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुल्क में इस साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन में मगरबी बंगाल की जानिब सबकी निगाहें हैं। ख्याल किया जा रहा है कि इस इलेक्शन के बाद मरकजी हुकूमत की तश्कील में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की हिस्सेदारी मजबूत होगी। ऐसे में कांग्रेस के ये लीडरान तृणमूल कांग्रेस की इस दावेदारी को रोकने में कितने कामयाब होंगे, ये देखना अहम है। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। आगे बढ़ेंगे। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कानपुर में मुनक्किद होने वाला प्रोग्राम मनसूख होने के बाद मुंतजमीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम कराने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का आज कानपुर में अवामी जलसा मुनक्किद होने वाला था। शहर में बड़े पैमाने पर जलसे की तशहीर भी की गई थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से वीजा न दिए जाने और बाज हलकों की तरफ से मुखालिफत के बाद प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने वीजा सिक्योरिटी कारणों की वजह से वीजा देने से मना कर दिया। इस वजह से प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है अगली तारीखों तक। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद उसकी जो है हम लोग डेट की जो है डिक्लेयर कर देंगे। पर इस जो ये हुआ है मतलब आवाम को काफी इससे जो है मतलब एक तकलीफ हुई है, सदमा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने बेंगलोर में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक प्रोग्राम को अंजाम दिया था। इसमें काफी तादाद में आई थी और इसी तरह एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि 26 तारीख को राघवेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के मतलब आवाम तक एक मैसेज पहुंचा दें। हाई स्कूल के तलबा में ट्रैफिक के तई शऊर को बढ़ाने के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मोबाइल वैन तैयार की है। इस वैन के जरिए तलबा को खास तौर पर उर्दू जबान में तैयार की गई वीडियो फिल्म दिखाई जा रही है। मोहम्मद आदिल अख्तर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फायज हैं। उन्हें फिलहाल ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तदरीस की जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद आदिल अख्तर अब तक शहर हैदराबाद के तकरीबन 300 स्कूल्स में तलबा को ट्रैफिक के कवानीन और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक मालूमात फराहम कर चुके हैं। एक वीडियो मोबाइल वैन लेकर आदिल अख्तर मुख्तलिफ स्कूलों को जाते हैं और वहां खासतौर पर हाई स्कूल के तलबा को मालूमाती वीडियो और फिल्म दिखाते हैं। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को हम स्पेशली कवर करते हैं जो अभी कुछ दिनों में कॉलेज में जाने वाले हैं। वहां पर जाके ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा फ्री हो जाते। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देखिए, डेली पेपर अगर आप उठा कर देखें तो उसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे फलाने पे एक्सीडेंट हो गया, वो एरिया में एक्सीडेंट हो गया, इधर पे एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब ने खासकर ये मोबाइल इस वास्ते बनाया कि बच्चों को, पूरे बच्चों को तो हम हमारे टीटीआई के पास यानी कि ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने तौर पे वहां पर जाएंगे जहां पर बच्चे ज्यादा है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक
अमित गर्ग साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव ले हैं बच्चों को शऊर पैदा करने का ट्रैफिक का, ये खास तौर से इस उम्र के बच्चों को, क्योंकि ये ना समझ होते, ये समझते इनको एनर्जी से भरे हुए रहते, तो ये समझते कि कुछ भी कर सकते हैं हम, और उसमें वो लोग अपनी कीमती जानों का उसका नुकसान उठा रहे हैं। मेरा बोलना तो ये है कि ऐसे तमाम स्कूल्स में ऐसे कैंप्स होना चाहिए, ऐसे सेशंस होना चाहिए, ताकि तमाम लोगों में शऊर। वीडियो फिल्म के साथ साथ इस मोबाइल वैन के जरिए ट्रैफिक से मुताल्लिक आवाम में शऊर बेदारी की तरगीब भी दी जाती है। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें रोड पे जाते वक्त हेलमेट यूज करना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तोड़ना चाहिए, फोन यूज नहीं करना चाहिए और स्पीड थोड़ी कम रखना चाहिए। इससे क्या फायदा क्या होगा? मैं ये मैसेज अपने फादर को देना चाहूंगी कि कभी गाड़ी ड्राइव करते वक्त फोन पर बात नहीं करना चाहिए और हमेशा हेलमेट पहनकर चलाना चाहिए। ज्यादातर एक्सीडेंट्स लोगों की लापरवाही की वजह से होते हैं। हमें जब रोड पे हम जब सफर करते हैं तो हमें स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, हेलमेट पहन के चलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आगे वाली गाड़ियां कैसे आ रही हैं, उनको देखते हुए ही हमें अपनी ड्राइविंग करनी चाहिए और हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी सोचना चाहिए। ट्रैफिक के कवानीन और एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाने के बाद तलबा को हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खास तौर पर उर्दू में शायद किताबचे तकसीम किए जाते हैं। इन किताबचों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक मालूमात दर्ज की गई हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भोपाल के बड़े तालाब में डूबने वालों को बचाने वाले गोताखोरों को एजाज से नवाजा। भोपाल में गोताखोर यूं तो कई वर्षों से लोगों की जानें बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी समाजी तंजीम ने इनकी कारकर्दगी की सताइश की और इन्हें एजाज से नवाजा। के माध्यम से ऐसे जाबाजों का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जाबाजी को दिखाते हुए, ड्यूटी तो सभी करते हैं मगर इन्होंने अपनी ड्यूटी को अपना अहम जवाबदारी समझते हुए एक ऐसे युवक की जान बचाई जो बड़े तालाब में कूद चुका था। किसी निराशा से वो उसी टाइम कूद गया था और उसकी जान निश्चित ही चली जाती। ये हमने एक व्यक्ति की जान बचाई थी आज से 4 रोज पहले। अच्छा, कैसे बचाई थी? तो मुस्लिम जी वो पानी में कूद गया था, फिर हम उसके पीछे दौड़े और उसको कूदकर बाल पकड़कर खींचकर बाहर लाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मुझे इसलिए दिलाया है, परसों के दिन जब 3-4 दिन हो गया एक लड़का मतलब कूद गया था तो उसमें मैंने जान बचाई थी। तो अपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है जो, उन्होंने स्वागत किया है, मेरा सम्मानित किया है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब तालीम के बगैर न मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है और न ही कौम मिल्लत के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार फारसी के मारूफ उस्ताद डॉक्टर आसिफा ज़मानी ने लखनऊ में किया। एजाज रिजवी कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए आसिफा ज़मानी ने यह भी कहा कि वही कौमें तरक्की के रास्ते पर जा सकी हैं जिन्होंने तालीम के हुसूल को अपना नस्बुल ऐन बनाया है। इस मौके पर कॉलेज के तलबा और तालिबात को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए असनाद और मेडल भी अता किए गए। लखनऊ के कैसर बाग में मुनक्किदा इस तकरीब में लखनऊ के मेयर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। एजुकेशन के बगैर, शिक्षा के हमारा मुल्क, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। इस चीज को सोचते हुए उन्होंने एजाज रिजवी कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो आजकल बहुत डिमांड पर है, उसकी बुनियाद रखी। रांची यूनिवर्सिटी के शुबे उर्दू में मुहाजिर अदब के उन्वान पर लेक्चर हुआ। इस प्रोग्राम में कनाडा से आए मारूफ ड्रामा निगार जावेद दानिश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के 3 तलबा को डॉक्टर सैयद अहमद एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम में रांची यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर एम रजीउद्दीन भी मौजूद थे।
आगे बढ़ेंगे। कनाडा में मुकीम जावेद दानिश एक तवील अरसे से हिंदुस्तानी ड्रामों को फरोग देने में मसरूफ हैं। इन दिनों जावेद दानिश रांची के दौरे पर हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ये है जावेद दानिश, जिनका आबाई वतन लखनऊ है, लेकिन तकरीबन 30 सालों से टोरंटो में मुकीम हैं। कॉन्वेंट स्कूल में तालीम हासिल करने के बावजूद वो उर्दू में लिखते रहे हैं। उनकी 1 दर्जन किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। 70 के दहे में कलकत्ता रेडियो स्टेशन में मुलाजमत के दौरान जावेद की मारूफ ड्रामेटिस्ट हबीब तनवीर से मुलाकात हुई, जिनसे बंगला ड्रामों को उर्दू में तर्जुमा करने की तरगीब मिली और इस तरह रेडियो ड्रामा पर मुश्तमिल परमीथियस नामी किताब मंजर-ए-आम पर आई और तब से वो उर्दू और ड्रामों के फरोग की कोशिशों में मसरूफ हैं। तो मैं सबों को ये कहता हूँ कि बिकॉज आई थिंक इन उर्दू, फॉर दैट आई राइट इन उर्दू। तो मैं सोचता उर्दू में, इसलिए लिखता भी उर्दू में। उर्दू मेरी मादरी जबान है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो टोरंटो में बसे कोई 30 साल हो गए हम, अगर उर्दू का काम कर रहे हैं हम लोग, और उर्दू बहुत ही जिंदा है, मुतारिक है। वहाँ थिएटर उर्दू का नहीं था, हमने उसे आबाद किया। रंगमंच कनाडा के नाम से हमारा थिएटर ग्रुप है, जो हजरा देखना चाहें तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है www.rangmanch-canada.org। तो उस पर हमारी सारी एक्टिविटीज नजर आएगी। जावेद दानिश को सफर का बेहद शौक है। वो अब तक दुनिया के बेशतर मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। यूरोप, अमेरिका और जापान के सफर के दौरान उन्होंने सफरनामा, आवारगी और हिजरत के तमाशे नामी किताबें लिखी। हालिया दिनों उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, जिसका नाम है बड़ा शायर छोटा आदमी। उर्दू में अगर आप ढूंढेंगे कि अफ्रीकी अदब क्या है, तो कोई किताब नहीं है, आज भी नहीं। वो पहली किताब थी काले जिस्मों की रियाजत, उसका तर्जुमा किया, बहुत कामयाब किताब थी। उसके बाद बहुत बड़ा मसला हमारी फलस्तीन का है। फलस्तीन के साथ साथ इसराइल जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने ये किया कि एक दूसरी किताब आई तर्जुमे की, जिसका नाम था एक बाप की औलाद, यानी इब्राहिम की औलाद है हम सब, मगर लड़ रहे हैं, मसले मसाइल हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो उन दोनों को मुताला करने के लिए कि भाई क्या है कंपैरेटिव स्टडी, तो एक बाप की औलाद में इसराइली अदब और फलस्तीनी अदब दोनों का तर्जुमा किया। ये किताब भी आपको दूसरी किसी कहीं नहीं मिलेगी कि किसी ने इसराइली अदब का तर्जुमा नहीं किया। जावेद दानिश बुनियादी तौर पर थिएटर से जुड़े हैं। यही वजह है कि वतन से कोसों दूर रहकर भी वो हिंदुस्तानी रंगमंच को फरोग देने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ETV न्यूज, रांची। खास बात में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वो सुबह कभी तो आएगी, गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें। उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। मदारिस में भी है संस्कृत की मकबूलियत, हिंदुओं में भी बढ़ रहा है उर्दू का ज़ौक़। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदू मुस्लिम तालिबात की हमांगी पर देखिए खास रिपोर्ट जुमा की शाम 7:30 बजे, खास बात में सिर्फ ETV उर्दू पर।
टोंक के मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में तारीख हिंद के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ारसी माखज़ की अहमियत के उन्वान पर सहरोज़ा सेमिनार जारी है। इस सेमिनार में मुल्क भर से दानिश्वर तबका शिरकत कर रहा है। सेमिनार के इफ्तिताही इजलास से खिताब के दौरान शुरका ने फ़ारसी को तारीख हिंद की कुंजी से ताबीर किया। टोंक इन दिनों माहिरीन लिसानियात का मरकज बना हुआ है। टोंक का अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट फारसी जबान पर हो रहे सहरोज़ा सेमिनार का मेजबान है। सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में माहिरीन ने हिंदुस्तानी तारीख में फारसी की अहमियत व इफादियत पर रोशनी डाली है। शुरका के मुताबिक हिंदुस्तान में तारीख का आगाज अहले फारस की हिंद आमद के बाद ही हुआ है। फारसी एक खजाना है, एक भंडार है हिंदुस्तान से मुताल्लिक इत्तिलात का, और अगर हमारे पास फारसी की कुंजी नहीं है तो हम इस खजाने को खोल नहीं सकते। इस लिहाज से सेमिनार इंतहाई अहम है कि उन्होंने इस अहम मौजू को चुना है ताकि आम लोगों की तवज्जो हो कि फारसी हिंदुस्तान के लिए क्या अहमियत रखती है। जब फारसी जानने वाले यहाँ आए तो उन्होंने तारीख नवीसी शुरू की। हिंदुस्तान की सबसे पहले तारीख जो है वो ताजुल मासिर है जो फारसी में लिखी गई है, और जो कुरून वुस्ता हम जिसे कहते हैं मेडिवल इंडिया, उसकी तारीख सिवाय फारसी के किसी और जबान में नहीं मिलती। सेमिनार के जिम्मेदारों ने सहरोज़ा सेमिनार की तफसीलात बताई और रियासती हुकूमत के इकदामात पर रोशनी डाली। ये मौजू है द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन मैनुस्क्रिप्ट टू प्रोटेक्ट इंडियन हिस्ट्री। तो ये बहुत अहम मौजू है तारीख हिंद के तहफ़्फ़ुज़ में फारसी माखज़ की अहमियत। इस पे यह सेमिनार हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आए हुए हैं। इस सेमिनार में राजस्थान हुकूमत की जानिब से लिसानियात के शोबे में गिरां कद्र खिदमात के एतराफ में APRI के बानी और डायरेक्टर शौकत अली को फारसी, मुफ्ती हसन को अरबी, इक़्तिदार हुसैन को तारीख और अबुल फैज उस्मानी को उर्दू के लिए अवार्ड से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नेताजी की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश मनाई। वहीं कोलकाता में भी मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से नेताजी को गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। इस मौके पर सियासी जमातों ने रियासत में खवातीन के साथ बढ़ते मजालिम को अफसोसनाक बताते हुए हुकूमत से सख्त इक़दाम करने की अपील की। इज्जत का जरूरत है, सोशल अवेयरनेस का जरूरत है, और यूनाइटेड एफर्ट्स चाहिए हुकूमत और पब्लिक मिल के। मिनिस्टर ने कहा कि स्टर्न एक्शन लिया जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उससे ज्यादा भयानक वीरभूमि में गुस्ताख कल हुआ है। ये तो और भी खतरनाक है। ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत है, हुकूमत को प्रोटेक्शन देना चाहिए। ममता बनर्जी भी चूंकि एक औरत हैं, एक औरत ही औरत के बारे में ज्यादा बेहतर सोच सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ममता बनर्जी सवाई इसके कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हैं। कल मुजाहिद आजादी सुभाष चंद्र बोस का यौम पैदाइश मनाया गया। मेरठ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से भी वतन के इस जानिसार को याद किया गया। एक जज्बा एक जुनून के उन्वान से मुनक्किदा प्रोग्राम के जरिए तलबा और तालिबात को यह बताया जा रहा है कि कौमी कायदीन को महज एक दिन या रस्मी तौर पर याद न किया जाए, बल्कि इनके मकासद को अपनाने की जरूरत है। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी ने नांदेड़ में जलसा सिरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया, जिसमें मौलाना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से मुसलमानों को तालीमी मैदान में काम करने पर उभारने की कोशिश की। इस दौरान मौलाना के हाथों नाबीना बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कायम किए जा रहे दीनी और असरी मदरसा हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम का संगे बुनियाद रखा गया। ये जो हम कहते हैं ना गरीब है उसकी वजह से हम तालीमी पसमानदा है, बेहिस है, बेहिस जालिम है, सफाक है, दरिंदे है, हमने समझा नहीं। हम वैसे मुसलमान हैं, हम सरकश हैं, बंदे नहीं। सरकशी की है, हमने बंदगी नहीं की है। इकरा के इंतखाब को हमने समझा नहीं। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं नाजिल कर दिया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, सबसे पहली आयत है, ऐसे ही नहीं नाजिल। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। 10 बजे खबरनामे के साथ आपसे फिर